एग्जाम। सो एग्जाम सबका अच्छा हुआ, ये सब आपने मुझे कल रिव्यू दिया था कि मैम एग्जाम वाज इजी, you did it well, that's really nice, and on your request I'm just discussing the paper so that I could provide you the solutions. So exams आपके खत्म हो चुके हैं, I know now you have to prepare for your JEE. All the best for that, and let's discuss the question paper. So this is write the names of any 4 fundamental data types of C++. Such an easy question. Write the names of any 4 fundamental data types. So आपके पास integers है, floats है, characters है and boolean data type है. तो 4 जो fundamental data types आपको यहाँ पे लिखने हैं वो आप लिख सकते हो as integer. That's the type would be integer, and then you will mention the keywords used for that. The keywords used for that is int or long, and उसके बाद आपके पास data type है float, and keyword used for that is float and double. Then the data type is character, and keyword used for that is char. So we have integer, we have float, we have character, and the fourth one is boolean, which is true or false, और उसका keyword है bool. तो ये 4 fundamental data types आपके पास C++ में होते हैं. So this should be your answer number A for question number 1. Second question है write the names of the correct header files which must be included in the following C++ code to compile the code successfully. So main start हुआ, string के अंदर string assign की है, यहाँ पे use हो रहा है strlen. So clearly for strlen we need string.h, and cout use हो रहा है, और cout use करने के लिए आपको चाहिए iostream.h. So easy question, 1 mark easily you can get over here. So B का जो आंसर है आपका, so पहला जो हमारा था question, that was question A, and question B का जो आंसर आपके पास है that is string.h and iostream.h. Easy one. C is rewrite the following C++ program after removing all syntax errors. Underline each correction done in the code. So as I've told you earlier many times, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करते हो पहले क्वेश्चन लिखोगे, अंडरलाइन करोगे गलत कहाँ है, फिर उसका करेक्ट करके लिखोगे, और उस करेक्ट में भी आपको अंडरलाइन करना है कि आपने क्या करेक्शन करी है. So पहली चीज ये जो लाइन है hash define area l, b, this is macro. मैक्रो में कभी equal to sign नहीं आता है, स्पेस आता है. So this is one error. We are not going to put this equal to sign. So it's hash define area l, b, no equal to sign, simply l into b. फिर आया structure. Structure कोई कीवर्ड नहीं होता है, कीवर्ड का नाम है struct. So there is no keyword as structure. तो कीवर्ड है आपके पास वो struct है, struct. So यहाँ पर आपको लेना है struct, ure पीछे नहीं आएगा. Then you have recta, नाम कुछ भी हो सकता है, बस स्पेशल सिंबल्स और स्पेसेस नहीं होने चाहिए. So that's fine. सेमीकोलन यहाँ बाद में आएगा, वो भी ठीक है. int length, breadth, लेंथ और ब्रेथ नाम ठीक है, सेमीकोलन है पीछे, दिस इज फाइन. सो अभी तक हमें 2 एरर्स मिले, एक ये इक्वल टू नहीं आएगा और एक स्ट्रक्चर की जगह सिर्फ स्ट्रक्ट आना चाहिए. देयर इज void main recta r is equal to, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के वेरिएबल को इनिशियलाइज करा रहे हैं, हम इनिशियलाइज स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं करते, इनिशियलाइज कर्ली ब्रैकेट में होता है. तो यहाँ पर आएगी कर्ली ब्रैकेट इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट. तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए, दैट्स एन एरर. करेक्शन है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होनी चाहिए. चौथा एरर है यहाँ पे आपके पास, इट्स नॉट लेंथ डॉट आर, इट्स आर डॉट लेंथ. सेम वे ओवर हियर, इट्स नॉट ब्रेड्थ डॉट आर, इट हैज टू बी आर डॉट ब्रेड्थ. सो 2 मार्क्स का था, 4 एरर्स हो गए. एक यहाँ इक्वल टू साइन नहीं आएगा, दूसरा ये स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्ट है, और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स होंगी, और यहाँ पर आर डॉट लेंथ, आर डॉट ब्रेड्थ होगा, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है. सो ये 4 आपके इसमें एरर्स हैं जो आपको ठीक करके लिखने थे. Find and write the output of the following C++ program code. Note, assume all required header files are already included. So हमें एक फंक्शन दिया हुआ है alter. Alter is receiving a pointer to a character. This one is also receiving a pointer to a character. एक कैरेक्टर लिया यहाँ पे t, और उन कैरेक्टर्स को आपस में स्वैप कर दिया. ओके, अब यहाँ पर क्या किया है, cout s1 and s2 endl. फिर आ गए हम मेन पे. ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है वैसे, आई होप आप में से काफी का सही हुआ होना चाहिए.
बट स्टिल हाउ वुड इट वर्क? जब हम यहाँ पे एरे डिक्लेयर करते हैं कैर एक्स फर्स्ट, तो x is basically a pointer which refers to the starting address of the string first. Same is the case with y. फिर हमने लिखा यहाँ पे alter x, y. जो बेस एड्रेस x में है वो s1 में आ गया, जो बेस एड्रेस y में है वो s2 में आ गया. यहाँ पे एक पॉइंटर लिया, s1 में जो एड्रेस था वो t में चला गया, जो s2 में एड्रेस था वो s1 में चला गया, एंड सो ऑन. सो एड्रेसेस रिप्लेस हो गए. तो s1 में आ गया s2 का एड्रेस और s2 में आ गया t का एड्रेस. दिस इज हाउ वी स्वैप टू वेरिएबल्स. अब S1 वाली जगह पे क्या प्रिंट होगा? सेकंड. और S2 वाली जगह पर क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट. सो पहले क्या प्रिंट करेगा? सेकंड एंड फर्स्ट. देन इट कम्स बैक हियर. तो हमने जो चेंजेस किए वो S1 पे पड़ी हुई वैल्यूज में नहीं किए, हमने सिर्फ पॉइंटर्स में पड़े हुए एड्रेस चेंज किए थे. उसकी वजह से x और y में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. सो x और y में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. अब वो प्रिंट करेगा फर्स्ट सेकंड. तो इसका आउटपुट आएगा, फर्स्ट लाइन में आपने लिखना है सेकंड एंड फर्स्ट, और सेकंड लाइन में लिखना है फर्स्ट स्टार सेकंड. ओके, आई होप यू गॉट कि किस तरह से आ रहा है. सो नॉर्मली जब हम करते हैं एरेस को पास करते हैं, अगर इस एरे के अंदर कोई चेंज किया होता है, S1 0 S1 1, उस स्टार S1 पे चेंज हुआ होता तो वो चेंज वापस रिफ्लेक्ट होता. पर हमने पॉइंटर में चेंज किया है, पॉइंटर पे पड़ी हुई वैल्यू पे चेंज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे तो सेकंड फर्स्ट आएगा, लेकिन वापस आकर वो फर्स्ट सेकंड ही प्रिंट करेगा. सो ऑन द फर्स्ट लाइन योर आउटपुट वुड बी second and first, and then it's going to be first star second. I hope you understood कि ये कैसे आया. Okay, then you have find and write the output of the following C++ program code. This is an easy question. ये repeated question भी है, पहले भी आया हुआ है. तो मेन से एग्जीक्यूशन शुरू होती है. फ्लोट m में 15 है, n में 5 है. यहाँ पे कॉल हुआ कन्वर्ट m, n. m is received in x by reference, मतलब जो भी चेंज यहाँ x में करोगे वो वापस m में होगा. n यहाँ y में पास हो गया, मतलब यहाँ पर y की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ओवरराइट होकर 5 हो गई. सो पहली कॉल में मेरे पास x में आया है 15 और y में आया है 5. ठीक है, वैसे तो फ्लोट को हम उसमें पास कर रहे हैं, अगर कुछ पॉइंट्स में होता तो वो रिमूव हो जाता, बट इट्स ओके. सो लाइक 5 है. x is equal to x upon 5, that is 15 divided by 5 which is 3. तो x की न्यू वैल्यू 3 हो गई, मतलब सेम m की न्यू वैल्यू भी 3 हो जाएगी. y is equal to x plus y, that is 3 plus 5 8. तो y की वैल्यू हो गई 8. वो प्रिंट क्या करेगा यहाँ पर? x जो कि 3 है स्टार y जो कि 8 है. सो फर्स्ट लाइन में जो प्रिंट हुआ आपका वो प्रिंट होगा 3 star 8. So we'll get 3 star 8 printed. अब उससे चेंज हो गया आपका m. m यहाँ पर अब 3 हो चुका है. अगली लाइन में कॉल हुआ कन्वर्ट n. n में तो कोई चेंज नहीं हुआ, n 5 था, अभी भी 5 ही है. कॉल हुआ x में 5 आ गया. y कितना है? 2. सो 5 अपॉन y, एक फ्लोट है एक इंटीजर है तो रिजल्ट पॉइंट्स में आ सकता है. 5 अपॉन 2 इज 2.5. तो n की न्यू वैल्यू 2.5 हो जाएगी, क्योंकि x जो है वो n को रेफर कर रहा है. सो x की न्यू वैल्यू बन गई आपके पास 2.5, और x प्लस y किया तो x कितना है? 2.5. y कितना है? 2. सो 2.5 प्लस 2 विल बी 4.5. सो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा 4.5. 4.5 प्रिंट हो गया, वापस आ गए. वापस आ चुके हैं, n चेंज हो चुका है 2.5 पे, पर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं कन्वर्ट m विच इज 3. फिर से इधर आए 3 और y कितना है? 2. सो 3 अपॉन 2 इज गोइंग टू बी 1.5. सो पहले मुझे चाहिए था यहाँ पर 4.5. there is a problem in my keypad, so let me take 4.5 and then we have 1.5. 1.5 plus 2, 1.5 प्लस y जो कि हमारा 2 है विल गिव अस 3.5. वो y की वैल्यू हो जाएगी. सो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. सो दिस शुड बी योर आउटपुट फॉर ई पार्ट. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि इसको कैसे करेंगे. सो ये आपका आंसर आएगा. नहीं, इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है ध्यान देने वाली, वो ये है कि यहाँ 4.5 नहीं आएगा और यहाँ 3.5 नहीं आएगा, बिकॉज
यही प्रॉब्लम अगर हम एग्जाम में कर देंगे तो वी गेट टू लूज मार्क्स, क्योंकि y जो है वो इंटीजर है. सो वी हैव टू केयरफुली सी दैट y इज एन इंटीजर. सो x इज इक्वल टू x अपॉन 5 से तो 2.5 आ गया, ठीक है, 2.5 प्रिंट हो गया. फिर 2.5 प्लस 2 इज 4.5, लेकिन y तो इंटीजर है, इंटीजर में 4.5 जा नहीं सकता, तो सिर्फ 4 जाएगा. वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होती है, पॉइंट के बाद जो भी है वो कंसिडर ही नहीं होगा. तो आपके पास जो आएगा y में दैट विल बी 4 नॉट 4.5. So it will print 2.5 star 4. Same way next time जब m पास होगा it's 3 upon 2, that's 1.5. 1.5 plus 2 करेंगे तो 3.5 नहीं होगा, 3 होगा. So it will show 3. So this will be your output. Okay. Next is f. Observe it and you have to tell the output. The function random n generates any possible integer between, that's okay. Possibly assigned minimum and maximum value which is assigned to n. Okay. So ये आपके पास मेन है, एरे में वैल्यूज हैं. स्टार्ट में लिखा है रैंडम 2 प्लस 1. रैंडम 2 आपको दे सकता है 0 या 1, उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 या 2. सो मिनिमम वैल्यू फॉर स्टार्ट इज 1, मैक्सिमम वैल्यू फॉर स्टार्ट इज 2. सेम वे फॉर एंड. अब स्टार्ट या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, और रैंडम 4 आपको दे सकता है 0 1 2 3. 0 1 2 3. तो मेरे पास स्टार्ट की जो वैल्यू है वो हो सकती है या तो 0 या हो सकती है 1. ठीक है, ये तो हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज हो गई स्टार्ट की. तो स्टार्ट या तो 0 होगा या 1 होगा. अब उसके बाद जो रैंडम 4 है वो आपको फिर से दे सकता है या तो 0 या 1 या 2 या 3. सो वी कैन गेट 0 1 2 या 3. अब उसको 0 में ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, 1 में ऐड करेंगे तो कुछ आएगी. तो स्टार्ट जो है वो 0 1 प्लस 1 था, इसलिए स्टार्ट 1 आपको दे सकता है 1 या 2. मतलब रैंडम 2 ने मुझे दिया 0 या 1, पर उसने उसको प्लस 1 भी किया, तो स्टार्ट की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है. तो ये जो लाइन है स्टार्ट प्लस रैंडम 4, स्टार्ट इज 1 और 2 एंड रैंडम 4 कैन गिव मी 0 1 2 3. सो 0 1 2 3 के चलते आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं वो आ सकती हैं 1 2 3 और 4. सो ये हो सकती है एंड की वैल्यू अगर स्टार्ट 1 होता तो. लेकिन अगर स्टार्ट 2 होता तो सेम वैल्यूज इधर भी आ सकती थी. तो आपके पास जो पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यू आ सकता है वो है 2 3 4 5, क्योंकि हमने 2 प्लस 0 किया तो 2 आया, 1 प्लस 2 किया तो 3 आया, एंड सो ऑन. सो दीज कुड बी द वैल्यूज. तो इसमें से इतना पता चल गया कि एंड की हाईएस्ट वैल्यू 5 आ सकती है एंड लोएस्ट वैल्यू 1 आ सकती है. सो मैक्सिमम वैल्यू फॉर एंड कैन बी 5, मिनिमम वैल्यू कैन बी 1. अब लूप शुरू हो रहा है स्टार्ट से और एंड तक जा रहा है, मतलब 0 पोजीशन वाला नंबर तो कभी प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि स्टार्ट या तो 1 होगा या 2 होगा. अब स्टार्ट 1 या 2 होगा, एरे में 0 पोजीशन पे 10 है, वो तो कभी प्रिंट हो ही नहीं सकता. या तो प्रिंटिंग 20 से शुरू होगी या प्रिंटिंग 30 से शुरू होगी, क्योंकि हम स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट या तो 1 होगा या 2 होगा. तो इससे सीधे सीधे आपकी ऑप्शन नंबर 1 बाहर हो गई, ऑप्शन नंबर 4 भी बाहर हो गई, क्योंकि शुरू या तो 20 से होगा या 30 से होगा. अब खत्म 5 तक कहीं पे भी हो सकता है. सो दिस इज 1 2 3 4 5 60 तक कहीं पे भी हो सकता है. तो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 आर योर वैलिड ऑप्शंस. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन. सो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको आउटपुट क्वेश्चंस आते हैं. सो अगली वीडियो में I'll be explaining you question number 2, and ऐसे एक एक वीडियो में करके I'll explain you all the questions. So this was question number 1. I hope आपको समझ आया होगा और I hope कि आपने सही किया होगा. समझ के तो चलो जो हो गया था वो तो हो गया, but now I hope आप सबने सही किया हो. All the very best, and I'll be uploading solution for 2 very soon. So by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.